So we have Kaustubh, Arushi, Ayushi, Devansh. Okay. कोई डाउट है किसी को? पहले वो पूछ लो. एनी डाउट एनीवन हैविंग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? Yes, I hope I'm audible to everyone. Yes, sir. Okay. मेरा टैबलेट का ये क्यों नहीं चल रहा? ओके. Please give me a minute, then I will start. There is some issue with the port, so I'm fixing it. Anyways, so let us start now. तो आज हम लोगों को जो टॉपिक करना है, दैट इज कॉल्ड लोकेशन ऑफ रूट्स. So we have different cases under this. We'll start with the first case, and the first case says when there is a number k which lies between the roots. When k lies between the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then what is the condition? This is the first case. This is case number 1. So in this particular case, when you draw the different type of cases, out of the 6 cases, 2 cases we will select, because in 2 cases only we can have such situation if there are 2 distinct roots. So upward opening parabola could be there, or a downward opening parabola could be there, which are having distinct roots, that is alpha and beta are distinct numbers. Then only we can say that k lies between the roots.
और किसी में ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम चाहें कि किसी और केस में, जैसे मान लो कि ये केस है, तो इसमें तो दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स हैं ही नहीं, तो उस केस में के अल्फा और बीटा के बीच में कैसे लाई करेगा? नहीं लाई कर सकता है। तो अल्फा और बीटा के बीच में अगर के लाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अल्फा एंड बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स, और उसकी जो दो केसेस होते हैं वो यही दोनों होते हैं जो नीचे में मैंने बनाए हैं। उसके अलावा जो 4 केसेस और होते हैं वो केसेस में ये पॉसिबल नहीं है कि अल्फा बीटा के बीच में के लाई करे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Okay, good. So now we have to see the condition for this case. So if we take any value k, suppose I am taking it here, and here I am taking it here, k, and if I take the value of k, so this value, if this is called as fx, fx is equal to ax square plus bx plus c. This is the quadratic expression corresponding to that quadratic equation. So fk, the value of the function at k is this one, and here the value of the function at k is this one. Now if we see that this graph, this is upward opening graph where a is positive, and in downward opening graph we have a is negative. I hope it is clear. You remember all these conditions now. When a is positive it is upward opening, when a is negative it is downward opening. Yes, So sir. okay, so what you can observe here is that fk will have a negative value here, because fk is below x-axis, and fk is having a positive value here because fk is above x-axis. So if you multiply a with fk, if you multiply a with fk, then the product should be negative, because if one is positive another is negative, if one is negative another is positive, both the cases we can see. Then when a is positive fk is negative, and when a is negative fk is positive, so they are having opposite sign. So how can we put the condition? We can say that a into fk is negative. So this is the condition for this first case when k lies between the roots. So write this down, every one of you. सर Yes. सर यहाँ पर जब आपने लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हुआ, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही होगा है। नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो तो उसके रूट्स होते हैं, दैट आर अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो पूरा ग्राफ हो गया, ओनली टू वैल्यूज अल्फा एंड बीटा आर इट्स रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं? अल्फा और बीटा, क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके जो रूट्स आते हैं अल्फा बीटा आते हैं। तो अल्फा बीटा जो रूट्स हैं उनके बीच में अगर के लाई कर रहा है तो हम इसके लिए ये कंडीशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसका रूट नहीं होता है, जिसका ग्राफ होता है। ओके Get- सर। अभी एक क्वेश्चन भी देखते हैं जिससे इसका एप्लीकेशन भी साथ साथ में क्लियर होता जाएगा। So this question is there which says find all values of p so that 6 lies between roots of the equation x square
plus 2 times p minus 3 into x plus 9 equal to 0. So as you can see here, the quadratic expression is fx is equal to x square plus 2 into p minus 3x plus 9, and a is equal to 1, that is the coefficient of x square is equal to 1. तो a तो 1 है और दूसरा एफ के क्या होगा, तो k is actually 6 है, 6 lies between roots of this equation, so k is 6. F of 6. Okay, Kaustubh, you have done it, good. So f of 6 जो होगा वो होगा 6 का स्क्वायर प्लस 2 p माइनस 3 इंटू 6 प्लस 9. तो x की जगह हमने क्या लिया, k की वैल्यू 6 लिया. So this would become 36 plus 12p, 36 again plus 9, and these two will get cancelled. So 12p plus 9. This is f of 6. Now the condition is this one, that a into f of k is less than 0, whereas a which is given here is 1, which is a positive value. So a is given as 1, and fk which you are getting, that is f of 6, that you are getting as 12p plus 9. तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 12p plus 9 ही होगा. 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर मिल रहा है. दिस इज लेस देन 0. So you get p is less than minus 9 by 12, which implies that p is less than minus 3 by 4. So your answer is minus infinity से लेके minus 3 by 4. Getting it? Yes, I want response from everyone. कौस्तुभ, तुम्हारा यही आंसर आया है? हो जाएगा तो बता देना. I hope everyone has done it. Am I right? Yes, sir. Okay.
Now let us come to another case. This case says that when k is less than both the roots of ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। तो ये क्या कह रहा है कि k जो कांस्टेंट है वो जो गिवन होगा ऑब्वियसली क्वेश्चन में, वो लेस है दोनों रूट से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दोनों रूट से। तो इसकी क्या क्या सिचुएशन बन सकती है? जैसे एक सिचुएशन तो बन सकती है कि k जो है वो यहाँ पर है और दोनों रूट्स इसके इसके आगे हैं। अच्छा, इसमें ये वाली सिचुएशन भी बन सकती है जब दोनों रूट्स इक्वल हैं, क्योंकि इक्वल रूट्स दोनों रहेंगे लेकिन स्टिल k इज लेस देन बोथ द रूट्स। फिर एक ये सिचुएशन बन सकती है कि k जो है इन दोनों रूट से छोटा है, और फिर एक ये सिचुएशन बन सकती है जिसमें इक्वल रूट्स हैं और k जो है दोनों रूट से छोटा है। एम आई राइट? यही 4 केस बन रहा होगा ना इसमें ग्राफिकली? यस सर। Okay, Ayushi. So if k is less than both the roots of this equation, then what are the conditions which we observe here? So see carefully what are the conditions. First of all, for this it is a greater than 0, for this a is greater than 0, for this a is less than 0, and for this also a is less than 0. Now if you take the value of fk, right, this fk will come here. So fk is actually positive here. So when a is positive, fk is positive. Whether you come here also, fk will be positive. And if you come in this situation, then when it will intersect, fk will be negative. Similarly here also fk will be negative. So when a is positive, fk is positive. When a is negative, fk is also negative. So can we say that one condition which they need to follow is that a into fk should be positive? ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? एक कंडीशन से इसमें काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि दोनों रूट्स के आगे के होता, अल्फा और बीटा दोनों रूट्स के आगे के होता, तो भी a इंटू एफ के वुड हैव बीन पॉजिटिव। इसमें और हमें कंडीशंस डालनी पड़ेगी। तो व्हाट आर द अदर कंडीशंस? बेसिकली सबसे पहले तो इसके दो रूट्स हैं, चाहे वो इक्वल हो या अनइक्वल हो, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पिछले वाले में ये कंडीशन डालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाता है। तीसरा ये है कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, इसके वर्टेक्स का, दिस इज द वर्टेक्स, तो जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो है -b/, और -b/2a जो है वो k से बड़ा है, इज ग्रेटर देन k। सारे केसेस में, चाहे ये वाला केस ले लो, चाहे यहाँ वाला ले लो, या यहाँ वाला ले लो, -b/2a is greater than k. So you have to remember these three conditions if you want to say that k is less than both the roots. Are you getting it? सर Yes, Ayushi? सर वो एक कंडीशन समझ नहीं आई जहाँ पर अल्फा और बीटा के आगे के होता था। हाँ, वो मैं ये बोल रहा था कि मान लो कि k जो है वो अल्फा और बीटा के आगे होता, यहाँ पर होता k, तब भी एफ के की वैल्यू क्या होती? पॉजिटिव होती। और यहाँ पर a भी पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में भी a इंटू एफ के वुड हैव बीन पॉजिटिव। लेकिन ये केस तो हमें लेना नहीं है, हमें तो लेस देन वाला लेना है, तो इसीलिए बस ये कंडीशन से काम नहीं चलेगा, हमें और कंडीशंस भी लगानी पड़ेंगी। ओके सर। तो ये वाली कंडीशन हम लोग यहाँ पर नहीं यूज कर रहे हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ये समझ में आ गया ना कि ये कंडीशन में भी फर्स्ट वाला पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन हमें ये कंडीशन तो चाहिए नहीं, तो और कौन कौन सा पॉइंट्स हम ले सकते हैं? यस सर।
कर रहे हैं। ओके। अच्छा, तीसरा केस क्या होगा? तीसरा केस ये है व्हेन k इज ग्रेटर than both the roots of ax square plus bx plus c equal to 0। तो इसमें क्या क्या हो रहा होगा हमारे पास? एक तो ये होगा कि दोनों रूट से बड़ा है। फिर एक केस ये हो सकता है कि यहाँ पर है दोनों रूट बराबर हैं और दोनों से बड़ा है। फिर एक केस ये हो सकता है कि यहाँ पर है और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला के दोनों रूट्स यहाँ पर हैं। फिर एक केस ये हो सकता है कि दोनों रूट्स इक्वल हैं और जो के है वो राइट में है। तो ये 4 केसेस होंगे। जैसे पिछले वाले में हमने 4 केसेस देखे थे, इसमें भी 4 केसेस बन रहे होंगे। अब इसकी कंडीशन क्या क्या होगी? तो एज यू कैन सी, पिछले वाले में भी मैंने बताया था कि एक कंडीशन जो इसमें भी है और उसमें भी थी, वो थी a इंटू एफ के इज पॉजिटिव। वो पिछले वाले में भी थी, इस वाले में भी है। लेकिन और क्या कंडीशन है? एक है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिकॉज देयर आर रियल रूट्स। और तीसरी कंडीशन जो दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करती है वो ये है कि इसके वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है -b/2a दैट शुड बी लेस देन k। पिछले में क्या था? -b/2a ग्रेटर देन k। इसमें क्या होगा? -b/2a लेस देन k। तो ये तीसरी कंडीशन जो है पिछले वाले केस को इस वाले केस से डिफरेंट दिखाती है। तो इसमें ये 3 कंडीशन हमें चेक करनी होती है। तो अब इस पर्टिकुलर इन दोनों केसेस पे भी एक क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे। सो द क्वेश्चन सेज दैट, ये क्वेश्चन थोड़ा अपने से ट्राई करना, तो फिर उसको डिस्कस करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ m for which both roots of equation x square minus mx plus 1 equal to 0 are less than unity। तो यहाँ पे k क्या है? 1 है। यूनिटी का मतलब क्या होता है? 1। और ये कौन सा केस है? ये यही वाला केस है जो थर्ड केस अभी हम लोग देखे हैं।
व्हाट विल बी द कंडीशन, जब तुम इस क्वेश्चन में ये सारी कंडीशंस लगाओगे तो क्या क्या कंडीशन आ रही होगी, जस्ट ऑब्जर्व दैट। जो पहला वाला कंडीशन है, व्हेन यू विल अप्लाई दिस कंडीशन ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, then what you will get that a into fk is positive। तो a की वैल्यू है 1, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू है 1, और f ऑफ k क्या है, तो f ऑफ k मतलब, और k भी 1 है, एक्चुअली k की वैल्यू जो है यूनिटी कह रहा है, तो k भी 1 है, तो f ऑफ 1 विल बी 1 स्क्वायर माइनस m इंटू 1 प्लस 1, सो दिस विल फाइनली बिकम 2 माइनस m। तो ये fk है। तो पहली कंडीशन क्या है, 1 इंटू 2 माइनस m इज पॉजिटिव, या तुम इसको कह सकते हो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 माइनस m इज पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो d है, जो डिस्क्रिमिनेंट है, वो क्या होगा, वो होगा m स्क्वायर माइनस 4, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन है माइनस b बाई 2 है, तो माइनस b इज एक्चुअली माइनस m, और 2a मीन्स 2 इंटू 1 इज लेस देन k विच इज 1। तो ये तीन कंडीशंस है। अब इन तीनों कंडीशन से जो फाइनल m का पॉइंट आएगा, m का जो सेट आएगा, वो क्या आएगा, ये हमें बताना है। सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज एक्चुअली माइनस ऑफ माइनस m विच इज प्लस m, एंड 2 कैन बी मल्टीप्लाइड ऑन द राइट हैंड साइड, तो m इज लेस देन 2। और यहां से भी जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो m लेस देन 2 आ रहा है, तो m लेस देन 2 यहाँ पे भी आ रहा है, m लेस देन 2 यहाँ पर भी आ रहा है, और यहां पर जब तुम सॉल्व करोगे, दिस इज एम स्क्वायर माइनस 4, जिसको लिखेंगे m माइनस 2 इंटू एम प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और वेवी कर्व मेथड जो हमने पिछले क्लास में किया था, उससे इसके जीरोज हैं 2 और माइनस 2, और हमें पॉजिटिव चाहिए, तो वो कब मिलेगा, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ। इसके जो जीरोज हैं वो हैं -2 और 2, पोल तो कोई है नहीं, तो ये क्या होगा, ये सबसे राइट में प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। तो इससे हमें इसका जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि या तो m लेस देन इक्वल टू -2 हो, या फिर m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। तो अब इन तीनों कंडीशंस का हम जब कॉमन निकालना चाहेंगे, तो व्हाट इज दिस इज 2, दिस इज -2। तो पहला कंडीशन कह रहा है कि m 2 से छोटा है, तो 2 को छोड़ते हुए हम इस एंड में देखेंगे। दूसरा कह रहा है m या तो -2 से छोटा है और उसके इक्वल है, या फिर 2 से बड़ा या उसके इक्वल है। तीसरी कंडीशन भी कह रही है कि m इज लेस देन 2। तो तीनों का जो इंटरसेक्शन तुम्हें दिख रहा है, इफ यू ऑब्जर्व हियर द इंटरसेक्शन, सो दैट इज एक्चुअली ये वाला जो एंड है, इससे लेस में ये वाली लाइन भी पाई जा रही है, ये वाली भी लाइन पाई जा रही है, ये वाली भी लाइन पाई जा रही है। तो देयरफॉर m इज एक्चुअली लेस देन इक्वल टू -2 इज योर आंसर। ठीक है। इसके किसी भी स्टेप में अगर किसी को भी डाउट है तो वो पूछ सकता है, बिना शर्माए, बिना झिझके।
सबको क्लियर है ये? यस। ओके, बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हो, बाकी लोग भी बताओ, कौस्तुभ एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर देयर। देवांश इज आल्सो नॉट स्पीकिंग। यस सर, समझ में आ गया। ओके गुड। नाउ वी कम टू वन मोर केस नाउ, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मैं और देता हूं तुम्हें। ये पिछले वाले केस के सेकंड केस पे है। For what values of m belonging to real number, both roots of the equation x square minus 6mx plus 9m square minus 2m plus 2 equal to 0 exceed 3? ये वाला क्वेश्चन अपने से करने की कोशिश करो, इसमें मैं अभी कुछ नहीं बता रहा। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। कर लोगे? आर यू कॉन्फिडेंट एनफ? कर लोगे ना? आई थिंक यू कैन डू इट। प्लीज ट्राई एवरी वन ऑफ यू।
व्हाट आर द कंडीशंस, आई होप तुम्हें पता है। अगर दोनों रूट से बड़ा है 3, दिस इज के, तो एक पहली कंडीशन ये होगी कि a इंटू एफ के नीड टू बी पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन d जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीसरी कंडीशन ये होगी कि अगर 3 बड़ा है तो -b/2a से बड़ा होना चाहिए 3, मतलब k इज एक्चुअली 3 है, तो मैं k ही लिख देता हूँ। अगले स्टेप में तुम इसको 3 रिप्लेस कर देना। नो सॉरी, बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्सीड 3, तो 3 छोटा हुआ ना, सॉरी। इफ यू अप्लाई द कंडीशंस, a तो 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एफ के जो होगा वो होगा एफ ऑफ 3, सो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -6 इंटू एम इंटू एक्स जो है वो 3 है, एक्स के बराबर है विच इज 3, प्लस 9m स्क्वायर -2m प्लस 2। This should be greater than 0. This implies 9m square -20m प्लस 11 ग्रेटर देन 0। ये तो अभी पहली कंडीशन आई है, इसको अभी सॉल्व भी करना है। दूसरी कंडीशन क्या है? When we talk about second condition, d is greater than equal to 0. So d is actually b square, तो -6m का होल स्क्वायर -4ac, 4 इंटू a तो 1 है, c हो जाएगा 9m स्क्वायर -2m प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये 36m स्क्वायर -36m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एज यू कैन सी ये टर्म 36m स्क्वायर और ये भी बाहर निकलेगा ब्रैकेट से, तो -36m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और -4 को मल्टीप्लाई, 4 को तो हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2m - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगली कंडीशन है k लेस देन -b/2a, मतलब 3 इज लेस देन -b/2a, तो -b का मतलब हो गया 6m, 2a मतलब a1 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट m इज ग्रेटर देन 1। ये तो तीसरा वाले से आ रहा है। इस वाले से क्या आ रहा है? इससे आ रहा है m ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और पहले वाले से क्या आ रहा है उसको मैं नीचे में सॉल्व कर देता हूँ। तो ये जो फर्स्ट वाला था इसको मैं नीचे में सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो गया 9m स्क्वायर
-20m को -9m और -11m लिख सकते हैं, प्लस 11 ग्रेटर देन 0। तो 9m कॉमन जब लेंगे तो इधर होगा m - 11, और 9m कॉमन लेने पे इसका हमने क्या किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दिया, और ये -1 हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये 1 हुआ और ये 9m - 11 होगा, करेक्ट। तो दिस इज ग्रेटर देन 0। तो व्हाट आर द zeros एक्चुअली? zeros here are 11/9 and 1 and 11/9, and graph would be something like this। तो अगर हमें पॉजिटिव चाहिए तो या तो m को हम 1 से छोटा लेंगे या फिर m को 11/9 से बड़ा लेंगे। तो ये तीसरे वाले कंडीशन है हमारे पास, मतलब एक्चुअली फर्स्ट वाली कंडीशन से ये निकल के आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट अस ड्रॉ द नंबर लाइन एंड सी की कॉमन पोर्शन कौन कौन सा आ रहा है। तो इससे m ग्रेटर देन 1 आ रहा है, इससे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है। तो इसमें ग्रेटर 1 है, इसमें इक्वल टू भी है, तो 1 इंक्लूडेड भी है। लास्ट वाले में m 1 से छोटा आ रहा है या फिर 11/9 से बड़ा। 11/9 इससे बड़ा होता है, या फिर 11/9 से बड़ा। तो तीनों का जब हम कॉमन पोर्शन देखेंगे, तो तीनों का जो कॉमन पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ये भी लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है। तो m is greater than 11/9 would be our answer। So when you write the final answer, we will say answer is m greater than 11/9, मतलब m belonging to 11/9 comma infinity। Is it clear to everyone? Yes, sir. Good, Ayushi। Let me receive a call for a 1 minute। हाँ हेलो कमल, बोलो। पैसे मैं भेजा था लेकिन गया ही नहीं, कुछ तुम्हारा जो बैंक का आईएफएससी कोड है ना वो चेंज हो गया है, तो इसमें दिखा रहा है कि कुछ और आईएफएससी कोड है, तो वो तुमको पता करके बताना पड़ेगा। लिख लेना तो बता देना। Sir, done. ओके, so we will come to the last case, case number 4। This case says that when exactly one root lies between k1 and k2,
तो मतलब ऐसा हो सकता है कि K1 इधर है, K2 इधर है, और इसके बीच में एक रूट है अल्फा और एक रूट बाहर है। या ऐसा भी हो सकता है कि K1 इधर है और K2 इधर है, और दोनों के बीच में एग्जैक्टली एक रूट बीटा है, अगला रूट लेफ्ट में। या फिर डाउनवर्ड ओपनिंग का भी ये दो केस बन सकता है, K1 इधर है, K2 इधर है, अल्फा बीच में है, बीटा राइट में है। या फिर ये हो सकता है कि K1 और K2 ऐसे हैं और बीटा बीच में है, अल्फा लेफ्ट में। तो यही पॉसिबिलिटीज हमें दिख रही हैं। और अगर हम इन सब को ध्यान से देखें तो व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच वी कैन फाइंड हियर। यहाँ पर एक ही कंडीशन काफ़ी है, क्योंकि तुम जब देखोगे ना तो f ऑफ K1 की जो वैल्यू है यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है और f ऑफ K2 की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आ रही है। यहाँ पर f ऑफ K1 निगेटिव आ रहा है और f ऑफ K2 पॉजिटिव आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर f ऑफ K1 निगेटिव आ रहा है और f ऑफ K2 पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरीके से जब हम ऑब्जर्व करेंगे चारों केसेस को, तो हम क्या देख रहे हैं कि f ऑफ K1 का जो साइन है और f ऑफ K2 का जो साइन है, चारों में वो अपोजिट है। तो इससे एक ही कंडीशन से हमारा सारा काम हो जाएगा, और दैट कंडीशन इज कि f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 है, निगेटिव है। दिस इज द ओनली वन कंडीशन फॉर दिस केस, क्योंकि दोनों हमेशा ऑपोजिट साइन के हैं। So now let us see few questions. So this is the first question. Find the relation between A and B if quadratic expression a square x square plus x plus b is greater than 0 for all value of x. ग्राफ का आइडिया अच्छा होना चाहिए इसके लिए. Second question for you is find the maximum value of 8 minus 6x minus 9x square. Okay. Next one is, पहले ये दो ट्राई करो, नेक्स्ट में आता है.
आर यू ट्राइंग ना? आई होप सारे लोग ट्राई कर रहे हो इसको. Yes, sir. Okay, Ayushi, rest. Rest. देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा. फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. तो इसमें आउट ऑफ द 6 graphs of quadratic expression, only one graph of quadratic expression would be there. That is, the graph is totally above the x axis. अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहता है तभी हम कहेंगे कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स दिस ग्राफ इज एक्चुअली पॉजिटिव बिकॉज इट इज अबव एक्स एक्सिस. और इसकी कंडीशन क्या होती थी? इसकी कंडीशन ये होती थी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव. तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए स्क्वायर, उसको पॉजिटिव होना चाहिए और वो पॉजिटिव है क्योंकि कोई भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है. तो इसलिए यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. दूसरा जो कंडीशन हमारा लगना चाहिए वो है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0. एक तो ए पॉजिटिव, दूसरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 इन द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो बी स्क्वायर का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब हो गया ए स्क्वायर, सी का मतलब हो गया बी. तो दिस थिंग शुड बी लेस देन 0. तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि 1 इज लेस देन 4a स्क्वायर बी, या हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बी इज ग्रेटर देन 1/4. दैट वुड बी योर आंसर. I hope it is clear. It was not so difficult.
हम्म सर ये ग्राफ वाला पोर्शन एक बार फिर से बता दीजिए। ग्राफ वाला पोर्शन एक बार फिर से करवा दूं? यस सर। तो पूरा तो ग्राफ ही था, 2-3 क्लास हम लोगों ने तो ग्राफ ही किया है, फिर से कैसे कर सकते हैं उसको? उसमें से कुछ डाउट आता है तो वो पूछ लो। तुमने क्लास मिस की थी क्या कोई? नहीं सर, पूरा ग्राफ में इस क्वेश्चन में जो आपने वो समझाया वो रिलेशन थोड़ा जोर समझ से नहीं आ बोलना रहा है। आयुषी, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर आई एम सेइंग, सर एम आई ऑडिबल नाउ? ऑडिबल तो हो, लेकिन बहुत धीमे आवाज आ रही है। सर आई एम सेइंग कि इस क्वेश्चन में जो आपने ग्राफ बनाया उसका वो एक रिलेशन समझ नहीं आया, लाइक हाउ टू अच्छा, सॉल्व वो तो एक्चुअली क्या है कि इसमें जब ये बोला गया है, मैं ऑल 6 ग्राफ्स नीचे बनाता हूँ, ठीक है? ये जो है एक ग्राफ था, फिर एक ग्राफ ये 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 था, और फिर एक ग्राफ ये था। ये 6 ग्राफ्स थे, डू यू रिमेम्बर? यस सर। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के हर वैल्यू के लिए, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक एक्स की जितनी भी वैल्यू है सबके लिए ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है दैट विल बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि दिस ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस फॉर ऑल एक्स। हर एक्स के लिए ये एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, तभी तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आउट यस ऑफ सर। ऑल द 6 graphs which you can see here, there is only one graph which satisfies this condition and that is this one। ये ग्राफ जो है तुम्हारा हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है थ्रू आउट। कैन यू गेट इट? यस सर। और इसकी जो कंडीशन होती थी वो ये होती थी a greater than 0 and d less than 0। वो हमने यूज कर ली। ओके सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ओ सर, नाउ इट्स क्लियर, थैंक यू। वेलकम। डन। Okay, now we will see second question। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना, पहले मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ फिर तुम लोग अपने से ट्राई करो। एक तो इसको थोड़ा सा सही ऑर्डर में लिखना है, तो -9x² को पहले लिखो, फिर -6x को, फिर +8 को। दिस इज द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इसका जो x² का कोफिशिएंट है -9 है, a जो है वो -9 है विच इज एक्चुअली निगेटिव। तो इससे क्या समझ में आता है, कोई बता सकता है मुझे? विच टाइप ऑफ ग्राफ इट वुड बी? अगर a निगेटिव है तो किस तरह का ग्राफ होता है? यस लो अगर एक्स एक्सिस। नहीं नहीं, अबव एंड बिलो एक्स एक्सिस यहाँ पे नहीं होगा। तुम लोग जो है वो रिवाइज नहीं कर रहे हो। मैं पढ़ा देता हूँ लेकिन तुम लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ए निगेटिव अगर है तो पैराबोला जो होगा ना वो डाउनवर्ड ओपनिंग होगा। डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला में ए निगेटिव होता है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला में ए पॉजिटिव होता है।
याद है? यस सर। तो यहाँ पर a जो है वो निगेटिव है, इसका मतलब ये कि डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो वर्टेक्स पे एग्जिस्ट करेगी, और वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो -b/2a, -d/4a होता है। तो ये जो -d/4a है दैट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? -d/4a। और -d का मतलब क्या हो गया? b² - 4ac अपॉन 4a। अब इसमें तुम वैल्यूज पुट कर लो। -b² का मतलब हो जाएगा 36, ठीक है ना, -6 का स्क्वायर, -4ac करोगे तो +4 × 8 × 9 हो जाएगा, क्योंकि -9 है इसलिए प्लस बन जाएगा। 4 × a दैट वुड बी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई थिंक हाँ सब सही है, -b² -4ac, ठीक है, ये वाला है, ये फंक्शन लेना है, ठीक है, उसको ऑर्डर सही रखना है। 4a वुड बी -9। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, वही मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, दैट वुड बी, कुछ कॉमन भी ले सकते हो वैसे, उससे कुछ कैंसिल भी हो जाएगा। तो -36 ऊपर में कॉमन अगर लेते हैं तो 1 + 8 हो जाएगा, और नीचे में -36 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड यू विल गेट 9 एज योर आंसर। तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कॉमन लेके जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर सकते हो। डन। हो गया? यस सर। ओके। ये एक ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। इफ a is positive, fx is equal to ax² + bx + c, and b² - 4ac is less than 0, then fx is greater than 0 for all x belonging to real number। एक और ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन ले लो। ये जो लास्ट वाला केस किया था ना हमने, उस पे ये वाला है। और रीजन भी बताना है, ट्रू क्यों है या फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है।
आज थोड़ा सा तुम लोग का एनर्जी लेवल कम लग रहा है, पता नहीं क्यों। थोड़ा ज्यादा टफ पोर्शन में हम लोग आ गए हैं, ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं। कॉम्पिटिटिव एंगल से कर रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी तो फेस होगा। अगर बस एनसीईआरटी पे स्टिक करेंगे तो कोई फायदा है नहीं। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोगों को जो भी कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस साथ साथ में नहीं करोगे तो भूल जाओगे। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स, तो उसका ध्यान रखो। आयुषी ने कहा फर्स्ट वाला ट्रू है। ठीक है, सही बात है आयुषी। तो ये कौन से केस की बात कर रहा है? as you can see here, if a is positive and this discriminant is actually negative, तो जो ग्राफ होगा वो वैसा ग्राफ होगा, a पॉजिटिव में अपवर्ड ओपनिंग होगा और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में देयर आर नो रियल रूट्स, तो ग्राफ विल बी टोटली अबव द एक्स एक्सिस। तो उस केस में ये कहना कि एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। What about the second question which is here? If fx is ax square plus bx plus c and fm into fn is negative और m n के बराबर नहीं है, अलग अलग नंबर है और दोनों रियल नंबर है, then there are two roots of, देखो सिंपल सी बात है कि एफ एम और एफ एन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो दोनों का जो साइन होगा वो अपोजिट होगा। अगर एफ एम पॉजिटिव है तो एफ एन निगेटिव होगा, या एफ एम निगेटिव है तो एफ एन पॉजिटिव होगा। फॉल्स आयुषी, इट इज करेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे जो सिचुएशन बन सकती है वो ये बन सकती है कि या तो ऐसा हो कि m और n के बीच में एक रूट हो, ठीक है, अब वो रूट ये वाला भी हो सकता है, लेकिन m और n के बीच में एक ही रूट होगा, देयर वोंट बी टू रूट्स। या तुम डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला भी ले सकते हो, m is here, n is here, and there is only one root between m and n. So then there are two roots of fx between m and n is a false statement. Correct statement फिर क्या होगा? There is exactly जो हमने लास्ट केस पढ़ा था, one root between m and n. I hope it is clear. Yes, sir.
पिछले क्लास से जो हमने वेवी कर्व मेथड पढ़ा था उससे एक क्वेश्चन मैं इजी सा दे रहा हूँ, दैट इफ फाइंड द इंटरवल, एक मिनट एक कॉल आ गया। Yes, I'm back. Find the interval satisfied by x for x square by 1 minus x less than 0. So basically what we will do here कि x स्क्वायर 1 माइनस एक्स को हम क्या कर सकते हैं कि x माइनस 1 लिख दें और माइनस साइन कॉमन ले लें, दिस इज लेस देन 0, और माइनस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसके जीरोस कौन से हैं, तो जीरोस इज अ जीरो इटसेल्फ, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो जीरो जीरो पे होगा और डिनोमिनेटर पे पोल जो है x1 हो रहा है, दिस इज द पोल। नाउ वी विल टेक positive in the rightmost region, when we will cross 1 it will be negative, and after hitting 0 it will again be negative because x की जो पावर है वो 2 है, इवन पावर है, तो इसलिए ये क्रॉस नहीं करेगा। तो अब ये ग्रेटर देन 0 कहाँ दिख रहा है हमें, एज यू कैन सी दैट x बिलोंग टू 1 कॉमा इंफिनिटी के लिए है। दिस वुड बी योर आंसर। इज दिस क्लियर? यस। ओके, सो बाकी सब कहाँ चले गए, आयुषी हो तुम बस अभी, तो चलो क्लास अब वो कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। और क्वाड्रेटिक
इससे जितने क्वेश्चंस हो सके प्रैक्टिस करो, तभी एप्लीकेशन भी समझ में आएगा। ओके।